Hello students, CSS phase 2 Delhi University preference filling, very important phase. So this video is about step by step process. Now phase 2 preference filling, this is for filling of program and colleges in CSS. This will be till 11:59 p.m. Monday, July 14. Remember this date? CSS auto locks the preferences on July 14 Monday 11:59 p.m. So this is the website ugadmission.uod.ac.in. So you have to fill your application number and password and log in. This window will open. So application phase 1, I hope you have already filled this. If not, complete it. And then once it is done, you will start with application phase 2. You will press the start button and you will start the application phase 2. This window will open. There are 4 tabs: subject mapping, program eligibility, preferences selection, preview preferences. So first is subject mapping. So आपके जो 12th board के subjects हैं, that will be shown. So for example, in this case, English core, economics, mathematics, business studies, accountancy. ठीक है, ये 5 papers हैं, CBSE board, right? Then map your CUT test paper with subject studied at class 12th. Subject mapping is the candidate who have completed phase 1 will be required to map the subject studied in class 12th with the test papers in which they have appeared in CUT 25. For admission to University of Delhi, it is mandatory for the candidates to appear in CUT in those subjects in which she or he has passed class 12th. Note, general test which is GAT of CUT 25 will not be mapped to any subject. So GAT will not be mapped, obviously, because 12th में ये नहीं होता है. ठीक है, जनरली ये GAT तो है ही नहीं किसी बोर्ड में, तो ये मैप नहीं होगा. So now this map your CUT test paper with subject studied at class 12th. So English business studies, economics business economics, mathematics applied mathematics. तो ये 4 CUT टेस्ट पेपर्स हैं. गैट मैप नहीं होगा. तो इंग्लिश को आप क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर के साथ मैप करोगे, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स को, जैसा भी है मैथ्स है या अप्लाइड मैथ्स, इसके साथ आप क्लास 12 के सब्जेक्ट के साथ मैप करोगे. ठीक है. Once this is done, then requirement of working knowledge of language for BA program combinations. Now there are many BA program combinations where a language is being offered as one of the 2 disciplines. The candidate must have a working knowledge of that language. So French plus something या Sanskrit plus something BA program ऐसे combinations हैं, जो कि आप चेक भी कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में. तो आपको उस लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए. सो यू हैव टू सिलेक्ट इंग्लिश यस, हिंदी यस, पंजाबी यस और नो, वॉट एवर द ऑप्शन इज, आपको ये फिल करना होगा. ठीक है. Then maths, applied maths, equivalent subjects. So there are many BA program combinations also where mathematics, statistics, computer applications, computer science is one of the 2 core disciplines. It is mandatory that the candidate must have studied and passed mathematics in class 12th examination. तो वो भी आपसे वो पूछेंगे, हैव यू स्टडीड एंड पास्ड मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स इन क्लास 12th? यस, जैसे इस केस में जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. देन सब्जेक्ट इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स. सो आप ये टिक करोगे, आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन द करेक्ट क्लास 12th मैपिंग. आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. ये भी आप डिक्लेरेशन. देन आई कंफर्म दैट आई हैव वेरीफाइड द मार्क्स एंड बाय मी of class 12th. I understand providing any wrong, incorrect information may lead to rejection of my allocation form. ठीक है, क्लियर हो गया. चलिए, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू. यहां पर ये करने के बाद यहां पे आओगे, सब्जेक्ट मैपिंग प्रीव्यू आपको दिखा देंगे. इंग्लिश कोर, इकोनॉमिक्स, ये आपके 12th के और ये आपके CUT के. सो गैट विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट,
ये मैप नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ये मैप नहीं होगा। बट वो ऑब्वियसली अगर आपने सीयूटी में दिया हुआ है, दैट ऑब्वियसली विल बी कंसिडर्ड। देन दिस मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स इक्विवेलेंट वो भी मैप हो जाएगा, राइट, अगर आपके पास मैथ्स है। देन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग नॉलेज, जो आपने फॉर्म जो ऑलरेडी फिल किया है, यस यस नो या जो भी लैंग्वेज में। उसके बाद प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, तो यहां पे आप क्लिक करोगे, ये प्रोग्राम एलिजिबिलिटी हो जाएगी। नाउ व्हाट विल दे डू, आपको वो शो करेंगे जिस जिस प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो। ऑल द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बी लिस्टेड, जिसमें आप एलिजिबल वो शो करेंगे, जिसमें एलिजिबल नहीं हो वो भी शो करेंगे कि नहीं एलिजिबल हो। ठीक है, तो सीयूटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा। ये मैंने नहीं शो किया हुआ है, बट आपका सीयूटी स्कोर कार्ड वो आपको दिख जाएगा। The candidates will be able to see their program specific CUT score for all the programs in which they are eligible. These program specific scores will be auto calculated and displayed on the dashboard of the candidates. तो ये देखिए सारा लिस्ट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। सो जैसे बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बिकॉज जो एग्जांपल मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट का, तो इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। सो बी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी वैसे ही स्ट्रीम न्यूट्रल है, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, टोटल स्कोर अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉम्बिनेशन 1 एनी 1 लैंग्वेज प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स और एनी 2 लैंग्वेज एनी 2 सब्जेक्ट्स। तो ये सब आपके सामने शो होगा, मतलब इतना सही सिस्टम है सीसेस पोर्टल। ऐसे ही बीए ऑनर्स अरेबिक में भी एलिजिबिलिटी शो हो रही है। हाँ, आपको फिल करना नहीं करना वो आपका चॉइस है, बट वो आपको शो जरूर करेंगे सारी एलिजिबिलिटी, सारे प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी स्कोर। जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैथ्स है तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एलिजिबिलिटी शो हो जाएगा, बिकॉज इसमें एनी 1 लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी वो भी शो हो जाएगा। बी ऑनर्स इंग्लिश की एलिजिबिलिटी भी शो हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स और सेकंड कॉम्बिनेशन they will show. I mean, if you'll see, this eligibility will be shown at every program. तो ऐसे जैसे लेट्स से मैंने काफी स्किप भी किया है, जैसे बीकॉम में there are two ways in which eligibility is calculated. Combination 1 any 1 language plus any 3 subjects or any 1 language plus any 1 subject and section 3 of CUT. तो जिसमें ज्यादा स्कोर बनेगा, जैसे लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट्स में 111 आउट ऑफ 1000 बन रहा है, और ये 155 आउट ऑफ, बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन 2 750 बन रहा है, तो वो ये पिक करेगा एंड वो प्रोरेशन होगा। एज द वेटेज ऑफ द सीयूटी सेक्शन इज नॉट सेम, अप्रोप्रिएट प्रोरेशन वो परसेंटेज में ये ज्यादा है, जैसे 155 आउट ऑफ 750 इंटू 100, ये परसेंटेज इससे ज्यादा है 111 अप्रोक्सीमेटली बाय 1000 इंटू 100, विच इज अप्रोक्सीमेटली 11.1 परसेंटेज, और ये 11.1% से ज्यादा है। लेकिन ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी सीसेस पोर्टल। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। जिसमें कॉम्बिनेशन में ज्यादा मार्क्स होंगे वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे नाउ इफ यू हैव मैथ्स, इवन इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यू आर एलिजिबल फॉर बी ऑनर्स BSc honors statistics, you are eligible for BSc honors computer science, you are eligible for BSc honors mathematics. If you will see, any 1 language plus maths plus any 2 subjects, any 1 language plus maths any 2 subjects, any 1 language plus maths plus any 2 subjects, दूसरा combination भी है। So you have to be very careful while filling the preference sheet. Please do watch my videos on IMS CUT channel, where I have discussed all these programs and their preferences. So if I'm discussing BSc honors stats or BSc honors mathematics or BSc honors computer science, I have given a word of caution over there also. So you have to, you are advised to see those videos. ठीक है, तो ये सारा शो हो जाएगा, whether you want to do it or not, ये आपका चॉइस है। BSc honors mathematics is definitely a difficult course as compared to let's say BCom और BCom honors, तो आपको बहुत ध्यान से ये प्रेफरेंस शीट भरनी है। एलिजिबिलिटी सारी आपको दिख जाएगी, और सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको शो होंगे विच यू कैन ऐड इन द प्रेफरेंस। ठीक है, ऐसे ही जैसे बीटेक, यस this student is eligible for this program also. If you see BTech IT and mathematical innovation, very good program. The combination which is any 1 language plus maths plus section 3 of CUT,
सिमिलरली BBA, FIA, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें भी एलिजिबिलिटी बनती है। तो एलिजिबिलिटी, राइट, तो ये आपको ये समझना पड़ेगा, राइट। इसमें इंग्लिश, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड, तो इसमें ये मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे बीकॉम में जो सेकंड कॉम्बिनेशन था लैंग्वेज प्लस एनी वन सब्जेक्ट, तो बेस्ट सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज पिक करना ही करना है तो बिजनेस स्टडीज में ज्यादा थे वो पिक कर लिया और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पिक कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा बेस्ट ऑफ 2 या बेस्ट ऑफ 3, वो पिक कर लेगा। वो आपका टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, इट विल बी टेकन केयर। तो ऐसे ही वो सारे शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बीए प्रोग्राम में आप अगर एलिजिबल हो, प्लीज वॉच द वीडियोज, आई हैव मेड वीडियोज ऑन बीए प्रोग्राम आल्सो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस मैथमेटिक्स, तो उसमें मैथ्स कंपलसरी है, 12th में होना चाहिए। लेकिन वो जो जो कॉम्बिनेशन बनता है एनी वन लैंग्वेज प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स, और एनी 2 लैंग्वेजेस एनी 2 सब्जेक्ट्स, और एनी वन लैंग्वेज एनी वन सब्जेक्ट प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूटी। तो मैथ्स सीयूटी का वो पिक नहीं कर रहा बिकॉज एनी वन लैंग्वेज प्लस एनी वन सब्जेक्ट प्लस गैट का जो बेस्ट स्कोर है उन्होंने पिक कर लिया है 155 पॉइंट समथिंग। यस, मैथ्स इज कंपल्सरी एट 12th लेवल, तभी आपको शो हो रहा है, होगा एज पर एलिजिबिलिटी, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट एलिजिबल, फॉर एग्जांपल बीएससी ऑनर्स बॉटनी के लिए एलिजिबिलिटी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड। तो केवल 3 पेपर्स की मेरिट है विच इज 750 मार्क्स की मेरिट है, ठीक है। तो 750 मार्क्स की केवल मेरिट है। और साथ में ये जो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, इसमें आप देख लीजिए कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए इन सीयूटी। यस, वन लैंग्वेज इज डेफिनेटली मस्ट इन सीयूटी, बट मेरिट के लिए लैंग्वेज के मार्क्स यूज नहीं होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, merit will be based on only above 3 subjects which is 750 marks, that's it। हाँ, आपको एक लैंग्वेज में अपीयर होना जरूरी है, ठीक है। जो लास्ट ईयर 30% कंडीशन था लैंग्वेज में फॉर बीएससी ऑनर्स बॉटनी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो भी इस बार रिमूव हुआ हो गया है। ओनली अपीयरेंस इन द लैंग्वेज पेपर इज सफिशिएंट, दैट्स इट। आप अपीयर होने चाहिए, उसमें कितने परसेंटेज मार्क्स है कोई मायने नहीं रखता। बट जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली है ये अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, राइट, कॉमर्स डोमेन, इसलिए यहाँ पर देखिए रेड कलर से शो होगा minimum eligibility conditions not satisfied, you have not appeared in relevant test papers required for this program। तो वो आप नहीं एलिजिबल हो तो वो नहीं शो करेगा, जिसमें एलिजिबल हो शो करेगा, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री चाहिए या फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो वो नहीं है तो वो नहीं शो करेगा, जिसमें आप हो वो शो करेगा। लेकिन बहुत कॉम्बिनेशन शो हो जाएंगे बिकॉज देयर आर मेनी कोर्सेज विच आर स्ट्रीम न्यूट्रल, आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सो बीए प्रोग्राम फ्रेंच प्लस इकोनॉमिक्स, इफ यू रिमेंबर हमने फ्रेंच को नो किया था, है ना, वर्किंग नॉलेज, राइट, तो इसलिए वो भी शो नहीं होगा। उर्दू को भी हमने नो किया था इफ यू रिमेंबर, तो वो भी शो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 268 प्रोग्राम्स, ऑल द प्रोग्राम्स आर लिस्टेड, और जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें वो दिखाएगा, जिसमें एलिजिबल नहीं हो वो नहीं दिखाएगा। देन यू प्रोसीड टू प्रेफरेंसेस सिलेक्शन, देन यू प्रोसीड टू प्रेफरेंसेस सिलेक्शन, इस पे क्लिक करोगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, एक बार सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से कर दिया आपने, राइट सब्जेक्ट मैपिंग कर दी तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। नाउ प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। 79 UG programs and 186 BA program combinations, 69 languages. Choose as many programs as you wish. Must ensure to save the preferences on regular intervals. Last saved preference order will be logged automatically upon reaching the deadline of the preference settings. ये याद रखना। The candidate will be able to select and order his or her preferences for programs and colleges. The candidate can choose multiple program plus college combinations. The available preferences tab will display all the possible program plus college combinations. The candidate may choose from, the candidate can use the advanced filter option available at the top to filter the colleges as well as programs। मैं आपको सब शो करता हूँ, तो ये शो होगा। देखिए सब्जेक्ट मैपिंग हो गया, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, कौन कौन से प्रोग्राम्स में एलिजिबल हो, नाउ द प्रेफरेंस सिलेक्शन, ये शो होगा। एडवांस फिल्टर भी है, मैं आपको सब शो करता हूँ,
ठीक है, ये आपको पेज ओपन होगा प्रेफरेंस सिलेक्शन का. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ बी यू नो attentive as far as this process is concerned. तो ये शो होगा अवेलेबल प्रेफरेंसेस, बेस्ड ऑन द CUT subjects and the class 12 subjects. Available preferences course plus college 1142 अवेलेबल प्रेफरेंस है. इतनी वो इतना आप इस स्टूडेंट का प्रेफरेंस शीट में भर सकते हो, बट ऑब्वियसली 1142 तो नहीं भरना है. ठीक है, अगर आप इसमें स्क्रॉल करते जाओगे तो सारे नीचे आप डाउन करते जाओगे, सारे अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं. बहुत कम्बरसम है, कभी कभी ओवरवेलमिंग भी है, कोई टेंशन नहीं है. दैट इज वाई this advanced filter is given. I'll show you that also, don't worry. उससे पहले the candidate must take utmost care while selecting the programs and colleges, as the order of selection of the program college combination will also determine the preference order. मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू फिल द प्रेफरेंस शीट, उसमें मैंने डिस्कस किया है एलोकेशन रूल्स. सो किस तरीके से एलोकेशन होता है वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो. The candidate can reorder to prioritize the preference order of program plus college combinations. Top, bottom, and preference number icons can be used to reorder the preferences. The submitted preference order will determine the allocation of seat. I'll show you. The candidate must take utmost care while selecting the program or programs plus college combinations. It is in the best interest of the candidate to choose as many programs as he/she wishes to join, provided he/she fulfills the program specific eligibility of the selected programs. ठीक है, candidate must ensure to save the preferences on regular intervals. Remember this, save नहीं करोगे तो preference दिखेगा ही नहीं, आप ऐड करते जाओगे. Only the program plus college combination selected and saved by the candidate during the preference filling will be considered for allocations and upgradations. पता चला सेव ही नहीं किया है, नहीं सेव किया तो डेडलाइन पर ऑटो लॉक हो जाएगा. अगर आपने कुछ सेव ही नहीं किया तो जीरो प्रेफरेंस भी ऑटो लॉक हो सकता है. Please do not make such silly errors. The candidates must preview the preference selection to confirm their saved choices. Upon reaching the deadline of phase 2, the saved preference will automatically get logged and will be used for allocations. The last saved preference order will be logged automatically. If you have nothing saved, it will be automatically logged. No saving will also be automatically logged, reaching the deadline of the preference filling. These logged preferences will become the basis for allocating seats for all rounds of CSAS UG 2025. तो ये फिल्टर है, तो आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, आपको सारे प्रोग्राम्स दिखने शुरू हो जाएंगे. आप कुछ भी टाइप करिए, बीकॉम टाइप करिए, बीए टाइप करिए, वो शो करेगा. जैसे बीकॉम ऑनर्स टाइप किया, वहां पे ऐड हो गया. देन लेट्स से यू वांट टू बीकॉम ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, कुछ भी क्लिक करना चाहते हो वो भी आप क्लिक करोगे, ऐड करोगे. तो आपने ये अप्लाई किया फिल्टर और आपको बीकॉम ऑनर्स SRCC दिख गया. Now you can add to top, you can add to bottom, you can click over here, add to preference number. क्लिक करके वहां पे एक पॉपअप विंडो आएगा, वो आप 9th प्रेफरेंस पे डालना चाहते हो, फर्स्ट पे डालना चाहते हो, 50th पे डालना चाहते हो, आप 50 पे डाल सकते हो. ठीक है, सो जस्ट प्ले विद दिस, प्रैक्टिस, प्ले बिफोर यू एक्चुअली. देखिए पहले क्या करिए, आप एक पेपर पे अपना कॉलेज कोर्स का प्रेफरेंस ऑर्डर बना दीजिए, लिख लीजिए कि मुझे ये कॉलेज में जाना है, ये कोर्सेज करना है. सो सिलेक्ट द कोर्स फर्स्ट, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन. ठीक है, MBA करना है या सिविल सर्विसेज करना है, उसके बेस पर पहले कोर्स देखो, कोर्स के बाद फिर कॉलेज देखो, टॉप कॉलेजेस देख लो. ठीक है, प्रेफरेंस फिलिंग वाली आप वीडियो भी देख लेना. तो कोर्स देखो, कोई कहता नहीं मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए, बस कोर्स कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. बिकॉज वाई आर यू वांट टू गो टू अ कॉलेज? टू स्टडी समथिंग, टू स्टडी अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, टू स्टडी अ पर्टिकुलर कोर्स. तो आई गेस कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको करना है कि आपको BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, बिकॉज 3 साल पढ़ना भी आपको वहां पर 3 साल. अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यू कैन स्टडी फॉर द 4th ईयर ऑल्सो. तो 3-4 ईयर्स तक पढ़ाई करनी है जो कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स पहले इंपॉर्टेंट बनता है, राइट? देन फिर कॉलेज. सो जैसे सपोज बीकॉम ऑनर्स करना है, उसमें श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अनडाउटेडली, अनआर्गुएबली द बेस्ट कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स. तो आपने सपोज उसको फर्स्ट पे फिल कर दिया, ऐड टू टॉप.
ठीक है, वो ऐड हो जाएगा बीकॉम ऑनर्स। ऐसे ही सपोज कोई और प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में अपने जैसे नंबर 2 पे कर दिया। इसको आप अप कर सकते हो, इसको आप डाउन कर सकते हो, इसको मूव टू प्रेफरेंस नंबर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, यू कैन डू। आप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनल सबमिशन मत करो, करके देखो, एक दो बार करके देखो, टाइम है अभी, आराम से करके देखो। एक पहले रफ शीट पे या शीट पे पहले प्रेफरेंस ऑर्डर बना लीजिए कॉलेज और कोर्स का, कोर्स और कॉलेज का वो बना लीजिए। उसके बाद एक बार देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। और ये सेव करना नहीं भूलना है, सेव चेंजेस ये करना नहीं भूलना, ठीक है। तो देखिए, सेव चेंजेस किया तो वो दिखाना शुरू हो जाएगा सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस दो पर, जैसे बीकॉम ऑनर्स ऐसे करते जाइए। एंड देन जैसे हमने अभी दो ही सिलेक्ट किया है तो सबमिट, सबमिट कर दिया तो वो लॉक हो जाएगा, वो मत करो यहां पर, वो अभी रुक जाओ, अभी अच्छे से पहले फिल कर दो, ठीक है ना। गलती से सबमिट नहीं कर देना। अपडेट प्रेफरेंस सिलेक्शन, फिर क्लिक किया, फिर लेट्स से और किया, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का BBFIA, SRCC का बीकॉम ऑनर्स नंबर 2 पे, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स BA प्रोग्राम, BMS शहीद सुखदेव, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस शहीद सुखदेव, यस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हैज BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस आल्सो। सो इस तरीके से प्रेफरेंस बना दो और फाइनली सेव करते जाइएगा एंड सबमिट। सबमिट नहीं भी करोगे, अगर सेव किया होगा तो डेडलाइन पे जो लास्ट सेव्ड प्रेफरेंस होगा वो ऑटो लॉक्ड हो जाएगा। But it's always advisable when you are confident, when you have filled your preferences properly, you are convinced this is my preference order, this is my preference sheet, then you can submit the preference selection also, ठीक है। ये आप, this is what it is all about, कुछ टेंशन नहीं है। हाँ, पहले प्रेफरेंस ऑर्डर बना लो पेन पेपर में, बार बार वो चीज रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, देन इसके बाद फिर सिमुलेटेड रैंक्स आएंगे। वंस दिस इज डन तो डेडलाइन होगा 14 जुलाई को। Before the commencement of the first CSES allocation round, the university will declare simulated ranks, which are purely tentative ranks based on the scores and preferences submitted by the candidates at the end of phase 2. अभी मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जांपल दूंगा 2024 का, एक स्टूडेंट का सिमुलेटेड रैंक दिखाऊंगा और एक्चुअल एलोकेशन दिखाऊंगा। आप देख लीजिए कैसे बनता है, फिर सो दैट एलोकेशन कैसे होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हाउ टू फिल द प्रेफरेंस शीट एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। ये टॉप से ही एलोकेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। The simulated ranks will be displayed on the dashboard of the candidates. These ranks should not be construed as a warranty, express or implied, or creation of a legitimate expectation or as a final ranks. वो simulation है कि ये rank है। उसके बाद declaration simulated ranks in which in case a candidate wishes to update, revise, add, delete, reorder any preference, she may do so at this time. The candidates must, however, save their preferences at regular intervals. Only the saved preferences will be used for regular evaluation. Declaration of submitted rank is on Tuesday, July 15, 5 PM. ठीक है। कैसे देखता है, मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल लेता हूं। अभी तो ऑब्वियसली 2025 का एग्जांपल ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो फेज 2 फेल हो रहा है। तो जस्ट 2024 एग्जांपल, तो ये प्रेफरेंस सिलेक्टेड एक स्टूडेंट का पिक किया। सो बीकॉम ऑनर्स SRCC प्रेफरेंस नंबर 1, BBFIA शहीद सुखदेव प्रेफरेंस नंबर 2, BMS शहीद सुखदेव प्रेफरेंस नंबर 3, बीकॉम ऑनर्स हिंदू प्रेफरेंस नंबर 4, बीकॉम ऑनर्स हंसराज, बीकॉम ऑनर्स KMC प्रेफरेंस नंबर 6, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स KMC प्रेफरेंस नंबर 6। ऐसे ही BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स SRCC। नाउ दिस स्टूडेंट हैज गिवन 7th प्रेफरेंस टू BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स SRCC, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड स्टीफेंस 12th, बीकॉम ऑनर्स रामजस 8। सो द आइडिया ऑफ दिस स्टूडेंट इज इसको बीकॉम ऑनर्स करना है, या अगर शहीद सुखदेव से BBFI या BMS मिल जाए तो बीकॉम ऑनर्स हिंदू हंसराज KMC, ठीक है। लेकिन BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स नीचे है, प्रेफरेंस उसकी कम है, इसके लिए कोर्स बीकॉम ऑनर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड स्टीफन से ऊपर बीकॉम KMC, बीकॉम रामजस, तो लॉन्ग टर्म व्यू रख के, because BA honors economics is a difficult course as compared to BCom or BCom honors. Remember this, it's an in-depth course in economics. तो वो भी सोचना होगा। तो स्टूडेंट ने सोचा कि नहीं इकोनॉमिक्स ठीक है, इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बीकॉम ऑनर्स में कि लो रैंक कॉलेज जाए, तो ठीक है, फिर उसके नीचे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स रख लिया हिंदू हंसराज, ठीक है। फिर बीकॉम ऑनर्स गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इस तरीके से प्रेफरेंस पड़ा। ये आया सिमुलेटेड रैंक।
बीकॉम में कॉमन रैंक था 330. नाउ कॉमन रैंक मींस फॉर ऑल द कैटेगरीज, अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी, SC ST, OBC, एवरीथिंग, इट्स अ कॉमन रैंक. ठीक है. बीकॉम ऑनर्स में 685 रैंक, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 2881 रैंक, BBFIA में 3303 रैंक, BMS में 3613 रैंक. ये रैंक आए सिमुलेटेड. ठीक है. एक्चुअल रैंक बीकॉम ऑनर्स में 6 है. ये एलोकेशन है. एलोकेशन 6th प्रेफरेंस नंबर. तो KMC 6 नंबर भरा था बीकॉम ऑनर्स से, ये उसका कट ऑफ क्लियर हो गया बिकॉज SRCC का कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का 782, कट ऑफ रैंक था 323. एंड इफ यू विल सी द सिमुलेटेड रैंक फॉर बीकॉम ऑनर्स वाज 685. उसके बाद एक्चुअल रैंक निकल के आया 675. तो 10 रैंक अप हो गया, 10 रैंक अप हो गया, बेटर हो गया रैंक. क्योंकि हो सकता है टॉप के जो 685 और 675 के बीच वाले जो स्टूडेंट्स उन्होंने प्रेफरेंस शीट चेंज कर दिया होगा सिमुलेटेड रैंक के बाद. देयर मेनी पॉसिबिलिटीज, चेंज कर दिया होगा और भी काफी कॉम्बिनेशंस बनते हैं. फाइनली जो एक्चुअल रैंक मिला 675 कॉमन रैंक फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड 770 वाज द स्कोर एंड एलोकेशन 770 पे 6th जो प्रेफरेंस था बीकॉम ऑनर्स KMC एलोकेट हो गया. अब याद करो थोड़ी देर पहले हमने देखा था BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, वो नीचे मैं दिखा भी देता हूं आपको. ये देखिए 6th प्रेफरेंस ये भरा था. BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स SRCC 7th प्रेफरेंस था. नाउ आफ्टर दिस एलोकेशन 6th पे एलोकेशन, जो 7th 8th नीचे वाले प्रेफरेंसेस थे 7th 8th, वो अब अपग्रेड हो ही नहीं सकता. Now, this student cannot upgrade to BA Honors Economics for SRCC because उसने 7th पे रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है. अपग्रेड सिर्फ ऊपर है. इसलिए जो ये कहते हैं कि मार्क्स के बेस पर प्रेफरेंस शीट बनानी चाहिए, गलत है. आपके कम मार्क्स हैं, आपको लग रहा है आप टॉप कॉलेज का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, तो टॉप कॉलेज को नीचे रख दो या रखो ही ना. ये तो बेवकूफी है ना. नीचे रख दोगे तो अपग्रेड ही नहीं पॉसिबल है. तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. अब देखिए फिर एक बार देखिए, ये 6 प्रेफरेंस तक है. 7th पे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स SRCC, बीकॉम ऑनर्स रामजस. नीचे वाली प्रेफरेंसेस उड़ जाएंगी. यू कैन नॉट डाउनग्रेड, यू कैन ओनली अपग्रेड इन द CSES सिस्टम. ठीक है जी. तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, ऑल द बेस्ट. ठीक है. अच्छे से प्रेफरेंस शीट भरना और लेट्स होप आपको आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स जरूर मिले. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू.